All right, friends, in this class today, I would like to teach you few words and a story that will help you a lot to speak in English, and it will help you to understand a story also. All right, this, is a story from Champak. As usually, I give you reference. This is ebook of Champak stories. I first read out this loudly. Well, and request you guys to also repeat it within means man hi man. Please write down the word or a phrase. Within means man hi man. नोटबुक लेकर आप लोग बैठेंगे, साथ में लिखते भी रहेंगे. I read it loudly. There are two characters in this story. Schools were shut for 3 weeks. Schools were shut for 3 weeks to contain the spread of coronavirus. Pratik was bored at home. Just then, Ma came and told him that his best friend Mohit had come back from America. Pratik picked up the phone and called Mohit. Mohit, hi, so glad are you back? Come to my house quickly and let's play, he said, excited. Hi Pratik, how are you? I can't come and play with you. My family and I have been asked to stay at home in quarantine. We all can't step out of house for 14 days, though we are all well. We don't want anyone to come near us as we may be carriers of the virus. After 14 days, I'm allowed to come and meet you, Mohit explained. I'll make you understand this in Hindi also, my dear friends. Just have patience. Our holiday was cut short because because we were all asked to go back because of coronavirus. I have missed a lot of school work. I called Chirag to ask for his notebook, but he refused. His mom told him not to contact me as I have just come from abroad. She said that anyone who comes in contact with he could get infected. What do I do now? Said Mohit sadly. Don't worry. I'll give you my notebook. I'll keep it outside your door. And once you are done, you can keep it outside and I'll come and collect it after 24 hours. We all should take precautions, but that does not mean I should stop being your friend. It is said that the virus does not survive on a surface for more than 24 hours. So I'll take my book from you after a day. You will get your notes and I won't have any chance of getting infected, said Pratik cheerfully. All right. You are my true friend, said Mohit with tears in his eyes and his voice, I beg your pardon, shaking over the phone. In this hour of need, we should extend all the help we can to each other. That's all I'm doing, said Pratik and kept his notebook outside Mohit's house and came back. Friends, what I did is I read it loudly. I took too much time while reading, but you guys will read this. I'll make you available the PDF through Telegram channel. Your respected groups, male and female. Now, I'll make you understand what I have done is, क्योंकि यहाँ मैं कुछ लिख नहीं सकता, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है और वन नोट पर I'll make you understand here. There is a word called empathy. दो वर्ड आप सीखेंगे, लिखते रहिएगा वर्ड्स को और ये स्पोकन में काम आएगा. The first is empathy and the second is sympathy. आपने sympathy सुना होगा. This is SYMPATHY. मोर एंड लेस दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. सिंपैथी का मतलब भी सहानुभूति होता है, हमदर्दी होता है. एम्पैथी का मतलब भी होता है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? जब दोनों का मीनिंग सेम होता है तो हम यूज कब करेंगे? लेकिन मैं ध्यान से सुनिएगा, एक सेंटेंस लिखिएगा आप लोग. आई हैव सिंपैथी फॉर यू एंड आई हैव एम्पैथी फॉर यू. एम्पैथी का मतलब होता है जब किसी की भावनाओं को, उसकी बात को
मैं आपके लाइक आई स्टेप इनटू योर शूज एंड देन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। जब मैं आप ही के स्टेप इनटू योर शूज का मतलब होता है आपकी भावनाओं को समझने के लिए मैं आपकी तरह सोचूंगा उसको, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। और नॉर्मली अगर मेरे पास हमदर्दी है तो दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। लेट्स सपोज यू आर माय फ्रेंड और मैं मेरे पास आपके लिए एम्पैथी है, मतलब आपकी भावनाओं को आपके शूज में स्टेप इन होकर मैं सोचता हूँ, स्टेप इनटू योर शूज, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। और वैसे क्या होता है सिंपैथी, जैसे बोलते हे मैन कम ऑन यू हैव नो सिंपैथी फॉर अदर्स, यानी आपको दूसरे के लिए क्या है सहानुभूति नहीं है। और एम्पैथी का मतलब हो गया जब आप किसी के शूज में स्टेप इन, यानी उसकी भावनाओं को समझने के लिए आप एग्जैक्टली क्या करते हैं, पहले एग्जैक्टली उसकी भावनाओं को फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। अब ये सेंटेंस को समझिए, ये क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। Alright, read why empathy is essential in these tough times. पढ़िए क्यों सहानुभूति यानी जो दूसरे के step into shoes, इसकी मैं हिंदी नहीं बता सकता आपको, you can understand. Please step into my shoes to understand my emotions. मेरी भावनाओं को समझने के लिए मेरे shoes में पहले step in into हुई आप। Is essential in these tough times. Tough times का मतलब कोई भी tough time हो सकता है। Let's think like I am corona infected. मैं कोरोना इन्फेक्टेड हूँ। आप मेरी भावनाओं को तब समझेंगे when you step into my shoes, यानी कि you have empathy for me. I hope you get it, guys. आगे देखिए, schools were shut for 3 weeks. Schools were, विद्यालय shut का मतलब होता है बंद हो जाना, मीनिंग लिख लीजिएगा, बंद हो जाना। स्कूल्स क्या हो गए, 3 हफ्ते के लिए क्या हो गए, बंद हो गए। स्कूल्स वर शट फॉर 3 वीक्स टू कंटेन, कंटेन का मतलब यहाँ एक तो कंटेन का मतलब हो गया रखना भी, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर। जैसे कि ग्लास की मैं बात कर रहा हूं तो हम क्या बोलेंगे, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ कंटेन का मतलब क्या हो गया, इसकी नाकाबंदी करना है। To contain the spread of coronavirus. The spread of coronavirus का मतलब हो गया जो कोरोना वायरस फैल रहा है। प्रतीक was bored, प्रतीक क्या हो चुका था, बोर हो चुका था। at home यानी घर पे वो बेचारा बोर हो चुका था। just then, तभी माँ came, माँ मीन्स मदर, मदर को आप माँ को इंग्लिश में माँ बोल सकते हैं, it's not wrong. All right. Just then Ma came and told him, और उससे बोला, told him that his best friend Mohit had come back from America. उसका जो best friend है वो अमेरिका से वापस आ गया है। Friends, in the it's a very small story. What you guys will do is आप इन्हें ईमानदारी से पढ़ लेंगे बच्चा लोग, और पढ़ने के बाद वर्ड्स भी मैं आपको करवा दूंगा, इंपोर्टेंट वर्ड्स। इसको मुंह जबानी आप यू विल गेट बाय हार्ट, इट मींस आप इसे याद कर लेंगे और फिर इसे कई बार रिपीट करेंगे और वीडियो में आप इसे बोलेंगे। It will boost your confidence, will help you to learn so many words and you can interpret the story. This is called Champak story. Pratik picked up the phone. अब क्या हुआ कि प्रतीक पिक अप, एक ये है एक फ्रेज, देखिए इसको, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, पिक अप। पिक का मतलब चुनना भी होता है, एक छोटी सी व्हीकल भी होती है पिकअप, आपने देखा होगा टाटा की जो मैजिक टाइप होती है पिकअप, आपने देखा होगा, उस व्हीकल का नाम ही होता है पिकअप। वैसे पिकअप का मतलब किसी को उठाना, किसी को घर से गाड़ी में ले आना, और कोई सामान भी अगर नीचे गिरी हुई है तो भी आप पिकअप दैट। ऑलराइट, पिक इट अप। आई होप यू गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स। तो पिकअप का वाइड यूज सीखिए, हाउ टू यूज इट इनटू स्पोकन इंग्लिश। ऑलराइट, so you have to use this. Pratik picked up the phone. उसने फोन क्या किया, उठा लिया, यहाँ इस सेंस में होगा उठा लिया। and called मोहित, और किसको फोन किया, फोन्ड मोहित भी होगा, कॉल्ड मोहित भी होगा। फोन भी एक वर्ब माना जाता है और नाउन दोनों। मोहित, हाय, मोहित या आश्चर्यचकित, हाय, सो ग्लैड यू आर बैक, बहुत खुशी हुई कि तुम वापस आ चुके हो। कम टू माई हाउस, मेरे घर आओ। 2 वर्ड आपसे पूछेंगे, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल तो नहीं है, क्योंकि मुझे याद आ गया, मैं बता देता हूँ। इन स्पोकन इंग्लिश इसका कोई मायने नहीं है डीप में जाना, बट यहाँ देखिए एक वर्ड होता है हाउस और दूसरा होता है होम।
इसमें क्या फर्क होता है? जैसे हाउस हमेशा परमानेंट होता है, या ध्यान रखिएगा, और होम चाहे मिट्टी का आपका घर क्यों ना हो, लेकिन अगर परमानेंट है तो वो हाउस भी कहला सकता है और होम भी। लेकिन होम टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। लेट्स सपोज वी गो ऑन पिकनिक फॉर सम डेज, राइट, और उस पिकनिक में हमने एक टेम्परेरी टेंट लगा दिया जंगल में, तो वो हमारा हाउस नहीं है, वो घर है, होम है, लेकिन हाउस नहीं है। क्यों? चूंकि वो परमानेंट नहीं है। कई लोग नाव पे जाते हैं, आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर जो हमारे देश का हिस्सा है, वहां पर पानी में चलते हुए दुकान होते हैं, पोस्ट ऑफिस भी होते हैं। इंडिया इज अ कंट्री व्हिच हैज फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। फ्लोटिंग मींस तैरते हुए दुकान होते हैं, मार्केट होते हैं, और कई जगहों पे ये चीज होते हैं। तो दोज आर टेम्परेरी। आई होप यू गेट इट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये डिफरेंस होता है। तो क्या बोला? कम टू माई हाउस क्विकली। क्विकली का मतलब जल्दी, तेजी से। यहाँ क्या हो जाएगा? जल्दी आ जाओ। लिखते रहिएगा वर्ड्स। एंड लेट्स प्ले। आओ हम लोग खेलते हैं। लाइक राहुल भाटी कमेंटेड और ही मैसेज्ड, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग और लेट्स प्ले। LET' इसका मतलब लेट अस प्ले। ही सेड एक्साइटेड, वह उत्तेजित होकर बोला। ही सेड स्टोरी इज इन पास्ट, excited. Hi Pratik, how are you? Hi Pratik, how are you? अब उसने बोला, दूसरी तरफ से मोहित ने बोला, चूंकि रिस्पॉन्सिबल मोहित लिखा है। हाय प्रतीक, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? कांट कम एंड प्ले विथ यू, नहीं आ सकता और ना ही तुम्हारे साथ खेल सकता। माई फैमिली एंड आई, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, माई फैमिली एंड मी, वहां आई बोलिएगा। 3 पर्सन हो तो 2 3 1 ध्यान रखेंगे आप। ये मैं लिख रहा हूं 2 3 1। इट मीन्स सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। लेट्स सपोज मैं बात करता हूं वह, तुम और मैं, तो पहले सेकेंड पर्सन यू, फिर ही एंड आई। मी नहीं बोलेंगे, एंड आई। यहां पर देखिए क्या बोला, माई फैमिली एंड आई हैव बीन आस्क्ड टू स्टे एट होम। मेरे परिवार को और मुझे घर पे रहने के लिए बोला गया। स्टे एट होम इन क्वारंटाइन। आपको क्वारंटाइन का मतलब हो गया आइसोलेटेड प्लेस, जहां पर आपको रखा जाता है। आइसोलेटेड एंड क्वारंटाइन, ध्यान से सुनिएगा। शी इज आइसोलेटेड, और हम जैसे कि कहेंगे कि बिकॉज ऑफ इट्स इलीगल एक्टिविटीज, मे बी किसी भी कंट्री का नाम रख लीजिए, द कंट्री वुड बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड लिख लीजिएगा वर्ड्स प्लीज, एंड आई होप कि आप सारे बच्चे वर्ड्स लिख रहे होंगे। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग, राइट। क्वारंटाइन का मतलब भी होता है, लेकिन यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको मिलती है। दिस इज कॉल्ड क्वारंटाइन। क्वारंटाइन। तो हम लोगों को क्या बोला गया है? माय फैमिली एंड आई हैव बीन आस्क्ड टू स्टे। आस्क का मतलब पूछना भी, आस्क का मतलब मांगना भी, राइट। और बोला गया है टू स्टे एट होम इन क्वारंटाइन। वी ऑल कांट, हम सभी कांट स्टेप आउट ऑफ द हाउस। स्टेप आउट, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। स्टेप आउट, हमने आपको क्या बोला था इससे पहले? स्टेप इनटू शूज, स्टेप इनटू शूज। ऑलराइट, ऑफ द हाउस फॉर 14 डेज। आपको पता होगा क्वारंटाइन जब होती है तो 14 दिन तक आपको रखा जाता है। ऑलराइट, दो यानी कि यद्यपि, वी आर ऑल वेल, यद्यपि, हालांकि, दो, वी आर ऑल वेल, हम सभी क्या है? ठीक हैं। वी डोंट वांट एनीवन टू कम नियर अस, और हम नहीं चाहते हैं। आप इस पे स्ट्रक्चर लिखिए। स्ट्रक्चर है आई वांट यू टू कम हियर। स्ट्रक्चर लिखिए। आई होप यू गाइस आर राइटिंग। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांट और एस अपॉस्ट्रोफी, ये है ऑप्शनल, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। अब सेंटेंस बनाइए। मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो, तो मैं सब्जेक्ट आई, आगे क्या हो जाएगा? वांट। वांट्स नहीं होगा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का से। आई वांट यू टू, ऑब्जेक्ट, आई वांट यू टू स्पीक। टू स्पीक क्या हो गया? इन्फिनेटिव। आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश। शी वांट्स मी टू टीच हर, वह चाहती है कि मैं उसे पढ़ाऊं। आई होप यू आर लर्निंग दिस। आपको मैं ग्रामर भी पढ़ा देता हूं और इसमें लिटरेचर के जरिए भी। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं।
My father wants me, my father subject, wants भी third person है, me object, to be an engineer, but I want to be a career counselor. My father wants me to be a singer, but I want to be an engineer. I hope आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया दोस्तों, और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल इस पे आप तकरीबन 50 सेंटेंसेस बना लेंगे बच्चा लोग. I hope you get it, and these 50 sentences will help you a lot to speak in English, my dear friends. I hope you get it. Thank you. We want all right, we don't want anyone, हम नहीं चाहते, we don't want anyone to come near us, कि वो हमारे पास आए, as we may be carriers. Carrier और एक होता है career, ध्यान दीजिएगा, a lot of us we make mistake. ये है career, career, this is called career. Career, like my career doctor. I hope you get it. Career means पेशा, and this is carry, carry. Carry means ले जाना या ढोना. All right, carry means ले जाना, और carry से क्या बना है, carrier. साइकिल के पीछे आपने देखा होगा, पहले राजदूत एक बाइक हुआ करती थी. When I was very young, I mean like a small kid, I used to see a bike. I hope आप में से कुछ बच्चों ने देखा होगा राजदूत. That is called देसी बुलेट. हालांकि बुलेट भी अपने आप में देसी ही है. So right, so कैरियर का मतलब यहाँ हो गया संवाहक, यानी कि कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह. To come near us as we may be carriers, और हम लोग क्या हो सकता है, संवाहक. मतलब कोरोना वायरस में if I am infected, I can infect you, मतलब आपको मैं संक्रमित कर सकता हूँ of the virus. After 14 days, यानी कि 24 दिन बाद, before 14 days, यानी अच्छा एक सेंटेंस में बच्चे ज्यादा गलती करते हैं. 14 दिन पहले तो बच्चे बोलते हैं बिफोर एगो 14 डेज. आप सीधा बोलिए 14 डेज बिफोर और बिफोर 14 डेज. ऑलराइट, आई एम अलाउड. ये वैसा ही हो गया जैसे एक बच्ची से मैंने पूछा था, तो व्हाट इज योर फेवरेट डिश, शी रिप्लाइड माय फेवरेट डिश इज रोटी एंड चपाती. तो बिफोर और अगो जब आप बोलेंगे. To come and meet you, I am allowed. After 14 days, I am allowed. मैं क्या हूँ, अलाउड हूँ, मतलब मुझे परमिशन दिया जाता है टू कम एंड मीट यू. 14 दिन बाद मोहित एक्सप्लेन्ड. एक्सप्लेन का मतलब क्या हो गया कि मोहित ने उसे ये चीज बताया. मान लीजिए एक्सप्लेन एक वर्ब है, इसे मैं बोलूंगा आई एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन्ड, आई एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग. मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था. Our holiday was cut short. जो हमारा हॉलीडे था. All right. Thank you very much राहुल कि आपने भी राजदूत देखा है. Our holiday was cut short. जो मेरा हॉलीडे है, हमारा हॉलीडे, हॉलीडे को वैकेशन भी बोलते हैं. वैकेशन ब्रिटिश इंग्लिश है आई गेस, और हॉलीडे ब्रिटिश इंग्लिश, और वैकेशन अमेरिकन आई गेस. या बोथ आर सेम, लाइक रोटी एंड चपाती. आवर हॉलीडे वाज कट शॉर्ट. कट शॉर्ट का मतलब उसको क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया गया. बिकॉज वी वर ऑल आस्क्ड, हम लोगों से बोला गया टू गो बैक बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. कोरोना वायरस की वजह से आई हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ स्कूल वर्क. आई हैव मिस्ड, मिस का मतलब क्या हुआ, मुझसे छूट गया. मैंने स्कूल वर्क में बहुत सारे क्या कर दिया है, छोड़ दिया है. आई कॉल्ड चिराग. मैंने क्या किया, चिराग को फोन किया. हिज नोटबुक. आई कॉल्ड चिराग टू आस्क फॉर हिज नोटबुक, यानी उसकी जो नोटबुक है, उत्तर पुस्तिका, जिसको हम लोग कॉपी बोलते हैं. लेकिन कॉपी का मतलब होता है नकल करना, और अनफॉर्चुनेटली हियर इन आवर कंट्री जो नोटबुक होता है उत्तर पुस्तिका, उसको हम लोगों ने कॉपी कॉपी बोलना शुरू कर दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक. ऑलराइट, बट ही रेफ्यूज्ड. उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया. हिज मॉम टोल्ड हिम. उसकी माँ ने उससे बोला नॉट टू कॉन्टैक्ट मी, मुझसे कॉन्टैक्ट ना करे. एज आईव, इसको क्या बोलेंगे, आईव. दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ आई हैव. आई जस्ट कम फ्रॉम अब्रॉड. मैं कहां से आया हूं, विदेश से आया हूं. शी सेड. ऑलराइट, she said that anyone who comes in contact, ये लोग वेकेशन पे गए होंगे बाहर घूमने. she said anyone, that anyone, कोई भी, anyone और anybody, इसमें आपको डाउट हो सकता है. anyone ज्यादा फॉर्मल है,
हालांकि anybody भी यूज होता है लेकिन वो थोड़ा इनफॉर्मल है, बट बोथ आर सेम, like everybody, everyone. I hope you get it. Everyone knows it. Everybody knows it. All right. Who comes in contact with me could get infected. यानी कोई भी अगर मेरे कांटेक्ट में आता है तो क्या हो सकता है? Get infected. Infected हो सकता है. What do I do now? मैं क्या करूं? Said Mohit sadly. मोहित जो कि फॉरेन से आया था वो बहुत उदास होकर ये बात बोले कि मैं अब क्या करूं। अब प्रतीक बोलता है। अब यहीं पर बारी आती है एम्पैथी की। अब आई होप यू गेट इट, एम्पैथी का मतलब क्या हुआ? बिकॉज प्रतीक स्टेप्स इनटू मोहित्स shoes and he understands his feeling. It means he has empathy for Mohit, right? Don't worry, I'll give you my notebook. चिंता मत करो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? अपना उत्तर पुस्तिका दूंगा. Fair, rough, whatever. I'll keep it outside your door and once you are done, I'll keep it, मैं इसको रख दूंगा outside your door, तुम्हारे दरवाजे के बाहर, and once you are done, एक बार तुम इसे फिनिश कर लेते हो, you can keep it outside, तुम इसे क्या कर लेना? बाहर रख देना, and I'll come and collect it after 24 hours, और मैं 24 घंटे के बाद इसे कलेक्ट कर लूंगा. We all should take precautions का यूज सीखिए कैसे होता है. जैसे मैंने आपसे बोला, physician prescribed you to take this medicine and that medicine, but please have precautions. मतलब एहतियात बरतिए. have precautions या फिर take precautions का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एहतियात यानी कि सावधानियां बरतिए. All right, Piyush, thank you very much, Piyush. I replied her sabji and tarkari, right? Okay, so there it is. Precautions means, but that precautions का यूज मैं आपको बता रहा हूँ. That you should take precautions or you should have precautions. यानी आपको एहतियात बरतनी चाहिए. Precautions. All right, but that does not mean I should stop being your friend. इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारा दोस्ती और जो ये है वो खत्म हो जाए. It is said that the virus does not survive on a surface for more than 24 hours. प्रतीक ने बोला, ऐसा बोला जाता है. It is said, बोला जाता है. ये आप पढ़ेंगे किसमें? वॉइस में पढ़ेंगे. I am told, she said, you are informed, आपको सूचित किया जाता है. कुछ बच्चों जिन्हें वॉइस पता होगा. So I'll take my book from you. 24 घंटे के बाद वायरस धरती से, अगर जमीन पर है तो धरती से नहीं, जमीन पर है तो वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. So I'll take my notebook from you after a day. और एक दिन बाद मैं अपना नोटबुक ले लूंगा. You will get your notes and I won't have any chance of getting infected. तुम अपने नोट्स ले लोगे और कोई चांस नहीं कि मैं इन्फेक्टेड हो जाऊं. Said प्रतीक cheerfully, पूरा खुश होकर प्रसन्नता के साथ प्रतीक ने बोला, जिसने मोहित को फोन किया था जब मोहित वापस आया. You are my true friend. तुम मेरे सच्चे दोस्त हो. Said Mohit with tears, आंखों में आंसू लेकर, in his eyes and his voice shaking over the phone. और उसकी आवाज जो थी वो क्या थी? कांप रही थी. Shaking over the phone. In this hour of need, यानी इस वक्त में, इस मदद की घड़ी में. In the hour of need, आवश्यकता की घड़ी में. In this, इसको लिख लीजिएगा, ये एक अच्छा फ्रेज है. In this hour of need, you proved that you are my true friend. आप इसको यूज कर सकते हैं स्पोकन में. We should extend all the help we can to each other. और हम एक दूसरे की क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं. That's all I am doing. वही तो मैं कर रहा हूँ. That's all I am doing. Said Pratik and kept his. प्रतीक ने बोला and kept his notebook outside Mohit's house and came back. उसने मोहित के घर के सामने नोटबुक रख दिया और वापस आ गया. Friends, the story is over. I made you understand the important words, although I'm giving you few words which I wrote already. These words are here. All right. These words are here. I changed the font size here. Nice. So here this is. I have changed the font size. It is bold now. Okay. So here the first word is empathy. I made you understand the difference between empathy and sympathy. Shut, बंद या बंद हो जाना. Contain,
नियंत्रित होना, राइट, कंटेन नियंत्रित होना, कैरियर वाहक संवाहक, आई होप यू गेट इट, कैरियर, कट शॉर्ट समय से पहले समाप्त कर देना, आई कट शॉर्ट योर हॉलीडेज, मैं आपकी छुट्टियां कम कर दूंगा, आई कट शॉर्ट योर लीव्स, आप यूज कर सकते हैं, शी कट शॉर्ट माई लीव्स, उन्होंने क्या कर दिया, मेरे बॉस ने मेरी छुट्टियां कम कर दी, प्रिकॉशन सावधानियां या एहतियात, शेकिंग कांपता हुआ. So these are those words. You can take the screenshot and I'll share this also there. You can take this out, dear friends. These will help you a lot to understand it, to understand the things. All right, what I do is now, my dear friends, I do the commentary of this story in English, then we will proceed. और आप भी ऐसे ही करेंगे, अभी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, I just make the story. हेलो फ्रेंड्स, आप इसको याद करके मिरर के सामने ऐसे ही बोलेंगे, इस स्टोरी को 2-3 बार पढ़ेंगे, मैं लिंक दे दूंगा, आपको याद हो जाएगा. हेलो फ्रेंड्स, और एक वीडियो भी बना लीजिएगा, and if it is possible you will just send this on the Telegram channel. Hello friends, my name is Prakash Singh Azad. Today my trainer taught me a beautiful story. All right, this is related to coronavirus, and in this story, well, the name of this story is, I forget, Responsible Mohit. Read why empathy is essential in these tough times. Well, in this story there are two boys. The first is Pratik and the second is Mohit. Pratik is bored at his home because he has no job to do. Job means his homework related to study. Then his mother comes and informed him, उसे सूचित करती हैं, that Mohit is back from abroad because he went there on vacation. Excited, Pratik called, picked up phone, picked up, use कीजिएगा, phone and called to Mohit, asked him, पूछा, to come to his home or house to play with him. But Mohit, being a responsible person or a student or a boy or a kid, replied that no friend, I cannot come just because of coronavirus. My family and I hope you remember 231, have been informed by the government official to stay at home in quarantine for 14 days. After that, I can come and meet you. Then Pratik was very disappointed to listen, yes, sunkar, that his friend will not come his home to play with him. Pratik, I'm sorry, I was having water. Pratik said that, friend, I'm really very sad that you cannot come. But Mohit informed him that, friend, I called one of my friends, मैंने एक दोस्त को फोन किया, and told him to share his notebook, but his mother refused and said that I am returned from foreign, or I might have coronavirus or infection. I may be the carrier. Carrier means sambaha. So he didn't help me. But Pratik said, friend, I'll help you. All right, and I'll help you, don't worry. I'll give you my notebook in front of your house. I'll keep it or put it, both we can use. I'll keep it, and once you finish, you will put it outside. After 24 hours, I'll take that notebook my home back. In that condition, you can do your homework and I'll not be infected with coronavirus, because it is said, bola jata hai, after 24 hours, virus gets died or it cannot infect us. That's all. This is the story for today.